Hello students of Standard 11, Learning Economics, Chapter 11, Economic Thoughts, Session 3. Topics of the session for the day are decentralized economy, simplicity and non-possession, doctrine of trustship. So, to begin this particular session, the first thing that we are going to know about is decentralized economy. Gandhiji favored decentralized economic system for India. He wanted economic power to be distributed among many Indians and not among a few people only. So according to Gandhiji, he believed that our economic system should be as such, where if economic benefits are to be achieved or gained, it should be gained by so many peoples together. It does not mean only particular group of people or particular section of people are getting benefits of the system that is in our environment or that is being available in the country. अगर किसी भी चीज से बेनिफिट हो रहा है तो वो पूरी कंट्री को हो और या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो. उसके अलावा सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन जहाँ रिच होते जा रहे हैं और बाकी किसी को जो भी सिस्टमेटिक फाइन इश्यूज वगैरह है या कोई भी सिस्टमेटिक चीजें एज पर अकॉर्डिंगली चाहिए वो नहीं हो रही है तो दैट इज नॉट गुड एनफ. अकॉर्डिंग टू हिम, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस शुड the central concern of any process, economic development, and he wanted villages to get equal benefits of development which can happen only through decentralized planning. तो उनका सोच क्या था कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट मस्ट नॉट ओनली बी द कंसर्न ऑफ प्लेसेस जहाँ पर आप सिटीज में रहते हो, वहाँ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज वगैरह है जिसको अवेल करके लोगों की लाइफ बहुत इजी हो जाती है. तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. टुकड़ों में अगर चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बहुत सारे लोग उनमें इन्वॉल्व होने लग जाए और उसके साथ साथ हम ये भी सोचे कि अगर हम किसी भी टाइप का डेवलपमेंट ला रहे हैं, किसी भी टाइप का चेंजेस ला रहे हैं, इकोनॉमिकली हम अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पर रूरल सेक्टर्स को भी इक्वली इन्वॉल्व किया जाए. क्योंकि रूरल सेक्टर्स अगर इन्वॉल्व रहेंगे, it will make people more compatible, it will make people more self-dependent and the living standard of the people can be improvised, it can be improved. So it is very necessary कि चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से सोच के उस एस्पेक्ट्स को फुलफिल किया जाए. So accordingly the decentralized economy was a great concern for Gandhiji. He gave the idea of decentralized economic planning as an alternative to capitalist planning and as a solution to the problem of centralized economies, and thus he promoted, what does he promoted? The idea of increasing the use of khadi and the idea of spinning khadi as a household industry with the help of spinning wheel, that is charkha. Fine. So this is what the idea of Gandhiji was actually more determined कि किस तरह से जो कैपिटलिस्ट है कि बहुत सारे रिच पीपल है वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिकली डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज नॉट गुड. आप चीजों की यूसेज को बढ़ाओ. किस तरह से चरखा या व्हील वगैरह यूज करके आप खादी क्लोथ्स वगैरह स्पिन कर रहे हो. आप अपनी हैंडमेड एक्टिविटीज को इम्प्रोवाइज करो ताकि हर एक सेक्टर, हर एक प्लेस को बहुत प्रॉपरली जो है डेवलप किया जा सके. सो इट विल बी द मोर इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर द सोसाइटी. द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग was rooted in the idea of Gram Swaraj, village empowerment, village self-reliance.
तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक की जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस वगैरह है वो किस तरह से जनरेट होती है, ये रूट इस तरह से है कि हम छोटे छोटे विलेजेस वगैरह को अगर हम करें तो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, ताकि वो सोच सके कि वो किस चीज़ के केपेबल है, वो जिस भी जगह पे रहते हैं उनके पास जो भी रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है वो उससे अपना फाइन या फिर अपने विलेज का ज़्यादा बेहतर किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर perspective. Simplicity and non-possession is the second point that we have. The problems of economic life arise owing to greed and race for increasing material possession for by forgetting ethics. यहाँ पर अब जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमिक लाइफ या फिर जो फाइनेंशियल हैबिट्स वगैरह के बारे में सोचते हैं वो क्या है, हमारा लालच। ये सोचना कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीज मेरे पास कैसे हो, इसके लिए हमें जिस हद तक जाना है, जो करना है, हम एक्चुअल में अपने जो मॉरल वैल्यूज है उसको भी हम गिव अप कर देते हैं। हमें सिर्फ चीजें अचीव करने के बारे में हम सोचते, हम ये नहीं सोचते कि अगर सिर्फ सब कुछ मेरे पास होगा तो दूसरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करेंगे, उनके पास ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी कि वो अपनी बेसिक चीजें भी फुलफिल कर सके। तो दिस प्रॉब्लम इज not being justified, not being thought by the people who face or who accept the truth that ग्रीड इज एवरीथिंग, हर चीज मेरे पास ही होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज्यादा रेज होती है, विच इज वाई ही प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ नॉन पोसेशन एंड कंजम्पशन फॉर नीड्स एंड नॉट फॉर ग्रीड। तो गांधी जी के जो वैल्यू थे वो क्या थे, उन्होंने आइडिया जो है स्प्रेड करने की कोशिश की कि आप किसी भी चीज को, ठीक है, पॉजेस करने की, मतलब वो सिर्फ आपका है, आपका ही होना चाहिए, ऐसा आपके अंदर फीलिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज आपके वजह से, आपकी लालच की वजह से आपके पास नहीं होनी चाहिए। जितनी आपकी जरूरत है, जितनी आपको आपकी नेसेसिटी लगती है उतना आप वो करो, उतना ही चीज आपके पास होनी चाहिए। अननेसेसरी के सब कुछ मेरा है, मेरे पास होना चाहिए, ये सारी चीजें बाकी लोगों की लाइफ को भी इक्वली अफेक्ट करते हैं। He advised people to restrict their wants and work towards contentment. For his own life, he followed the principle of simple living and high thinking. ठीक है, इसलिए वो सब लोगों को यही एडवाइस करते थे, जितनी तुम्हारी जरूरत है अपने नीड्स को वहीं तक स्टेबल रखो, उससे ज्यादा आप फॉरवर्ड मत हो। वो खुद अपनी पूरी लाइफ एक ही थॉट के साथ निकाल दी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की सोच बड़ी रखो और लाइफ एकदम सिंपल, जितनी आपको जरूरत है, जैसे जरूरत है, दूसरों की आप हेल्प कैसे कर सकते हो, सिर्फ यही सोचते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओ। ही स्टेटेड द फॉलोइंग रीजन फॉर रेस्टलेसनेस इन ह्यूमन लाइफ। उनका ये सारी चीजें जो मेंशन करने का या स्पेसिफाई करने का सबसे मेजर रीजन था वो ये है, ताकि ह्यूमन के अंदर है ना, हर एक चीज को लेके हमेशा जो होता है ना कि उनके थॉट्स वगैरह में आराम नहीं होता, वो हमेशा किसी ना किसी उलझन में उलझे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा है। जैसे ही एक आधी थोड़ी सी भी पूरी होती है, दूसरा राइज हो जाता है, दूसरा पूरी होती है, तीसरी राइज, मतलब एंडलेस है। तो हम अपनी सोच को कहीं पे भी रेस्ट नहीं दे पाते हैं। उसका सबसे पहला रीजन क्या है? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वांट। आ गया वही कि हमारी जो वांट्स है, हमारी नीड्स है, वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली एक की पूरी होती है, दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरे की पूरी होती है, तीसरी तैयार रहती है, ऐसे एक के बाद एक के बाद हम ऑन गोइंग प्रोसेस में अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को जो है रेज करते रहते हैं, विच इज अगेन बिकम्स कॉम्प्लिकेशंस फॉर द सोसाइटी। क्योंकि हम सिर्फ अपनी नीड के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाती है। सेकेंड पॉइंट इज यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स का यूज करना जो बेसिकली किसी भी पुअर पीपल को एटलीस्ट यूज करना नहीं आता है, फाइन, जिसके वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिल पाती, अगेन वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उनकी अर्निंग क्राइटेरिया। तो ऐसी मशीनरीज वगैरह यूज करो जो हर कोई यूज कर सके और अपना अर्निंग सोर्स जो है तैयार कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ प्रेजेंट टाइम्स विच क्रिएट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो फिलहाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि जो रिच पीपल है वो अर्न कर रहे हैं, वो कंटिन्यू अर्न करते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है क्रिएट कर रहे हैं, और जो पुअर पीपल है उनके पास कोई स्कोप नहीं है, उनके पास कोई ऐसा वे नहीं है जहां पर वो काम कर सके या अपने लिए अर्न कर सके। तो ये जो गैप आता जाता है रिच और पुअर का, वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा
जो है विथ टाइम रेज होता रहता है। एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन wants एंड welfare, Gandhiji stated that welfare increases when wants are limited. Real happiness live in simple living. अब जो रिलेशनशिप है, ठीक है, किसके बीच में, वॉन्ट्स और वेलफेयर के बीच में, गांधी जी किस तरह से स्टेट करते हैं कि अगर आप अपने वॉन्ट्स को लिमिटेड कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होंगे, एक्स्ट्रा वे होगा, वो आप दूसरों की हेल्प के लिए क्रिएट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वांट की लिमिटेशंस दूसरों के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करती है। दूसरों के लिए आपकी लाइफ जितनी सिंपल होगी, आप उतना ही मेंटल स्ट्रेस से दूर रहोगे, क्लियर, और उतना ही अपने लाइफ को प्लस दूसरों की लाइफ में हेल्प करके, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके, उनके लिए रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल करके उनके लिए लाइफ को और बेटर कर पाओगे। Production and distribution should be undertaken keeping in to consideration the needs of people, to each one according to his or her needs. He insisted upon the idea of everyone's livelihood without anyone's exploitation. ठीक है, ये उनका बहुत मानना था कि प्रोडक्शन एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो हर एक को, आप हर एक इंडिविजुअल की नीड, हर एक इंडिविजुअल की जो वांट है उसे ध्यान में रखते हुए कि कब उसे क्या जरूरत जो है पड़ जाएगी, अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस होना चाहिए और उन तक वो पहुंचना चाहिए। उनका ये था कि आप अपनी लाइफ बेहतर कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट किसी के लाइफ के कॉस्ट पे किसी का लाइफ बेटर होना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप किसी की लाइफ एक्सप्लॉइट मत करो, है ना, किसी की नीड को एक्सप्लॉइट मत करो। आप उसके पास चीजें अवेलेबल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम कई सारी चीजें प्रोडक्टिव बनाने के चक्कर में स्पॉइल कर देते हैं, तो जो रिसोर्सेज उनको अलग तरीके से काम आ पाता वो भी उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो थिंग्स शुड बी very much clear in the mind of people that how the needs and wants of people can be fulfilled within the limitations of your usage. Fine. The next point that we have is doctrine of trusteeship. Trusteeship is one of the important principle given by Gandhi ji. बहुत important principle है जिसको वो बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। He gave this principle getting inspired by the Bhagavad Gita and Ishopanishad. Fine. ट्रस्टीशिप उनके हिसाब से क्या था कि आप एक तरह का, ठीक है, आप एक जगह जहां रहते हो जहां लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है, इंसान के बीच में जो वेल्थ को अक्वायर करने का ग्रीड है कि सब कुछ मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट ईच अदर, help each other and make things available for each and everyone who is being available over there. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच के सब कुछ तो अक्वायर कर लिया और बाकी सारी चीजों के लिए कुछ भी बचा नहीं है। The Ishopanishad quotes, all that is created on earth is because of God and hence we must relish it after surrendering it. ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें ये कोट किया हुआ है क्या कि जो भी अर्थ पे अवेलेबल है सब गॉड की क्रिएटिविटी है, ठीक है, हमें जितना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना उसे अचीव करके उसे उतना अच्छी तरह से रखना चाहिए और बाकी सारी चीजें दूसरों के लिए सरेंडर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज माइन, आई शुड हैव इट, दिस प्रिंसिपल, ठीक है, not only affect your individual life but the life of other people too. If a person has inherited and accumulated large amount of wealth, she or he should form a trust of excess wealth. अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रखी है, सब कुछ उसे खुद को बिलोंग करता है, तो उसे जितनी जरूरत है उतना वो अपने पास रख के दूसरों की हेल्प के लिए यूटिलाइज करे, ताकि उसी की हेल्प से दूसरों की लाइफ भी और ज्यादा बेटर हो सके और ज्यादा अच्छी हो सके। तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द पीपल जिसके पास सब कुछ है, जिसके लिए कोई भी पर्टिकुलर चीज अवेलेबल होना इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। अ पर्सन रिक्वायर्स ओनली एज मच वेल्थ एज नेसेसरी फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ, है ना, आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ, आप एक फुल फ्लेज जो है डिग्निफाइड लाइफ किस तरह से जी सकते हो वो जरूरी है। उतनी ही वेल्थ आपको चाहिए जहां पर आपके पास रहने के लिए घर हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, खाने के लिए जितना आप सेटिस्फाइड हो सको उतना फूड, ये बेसिक चीजें जो आपकी फुलफिल हो सके, आपकी फैमिली की फुलफिल हो सके, उतना आपके लिए काफी है। अगर उसके अलावा आप केपेबल हो तो
try to help it in the society itself. Wealth which is excess, then that belongs to the society. अगर आपके पास उससे ज्यादा वेल्थ है तो गांधी जी के अकॉर्डिंगली वो वेल्थ आपकी नीड से ज्यादा आपकी सोसाइटी की नीड है, तो सोसाइटी की नीड भी फुलफिल करना उतना ही इम्पोर्टेंट या जरूरी है. द ओनर्स ऑफ वेल्थ एंड कैपिटलिस्ट कैन वॉलंटरली एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ देयर वेल्थ. राइट, वो खुद है ना, इंसान को ये चीज खुद फील में आना चाहिए कि उसके पास जो भी है वो किस तरह से उसको दूसरों को रिप्रेजेंट कर सकता है, दूसरों की नीड के लिए यूज कर सकता है. तो उनका ये अगर खुद में नहीं जस्टिफाई होता है, खुद में नहीं आता है, तब तक आप इसके लिए कुछ फर्दर नहीं कर पाते हो. दे विल बी अलाउड टू रिटेन द stewardship of their possessions and to use their talent to increase the wealth, not for their own sake but for the sake of nation and therefore without exploitation. तो अगर उनके पास ये टैलेंट है ना, उनमें ये कैपेबिलिटी है, या फिर है ना हमेशा से उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह है, वेल्थ वगैरह है, तो और या फिर वो एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी है, उनमें ये टैलेंट है, उनमें ना ये सारी चीजें गेन करने का सोर्स है, वे है, तो वो ये सारी चीजें करे. और किस लिए करे, उनके पास तो ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर लिया, उनके पास है, अब वो ये सारी चीजें करे फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, और इसमें किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करे, खुद के नीड वगैरह को फुलफिल करते हुए दूसरों के बेटरमेंट के लिए ये सारे स्टेप्स ले. सो दीज आर अकॉर्डिंगली द थॉट्स विच गांधी जी ओ, एंड not only he owed, he made the principle of his life as such, he followed the path as such and tried to make people aware that this should also be followed by them equally. Thank you.